بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اسی ذات واجب کے لیے جو کن فیکون کا مالک و مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی قوموں پر راضی ہوتا ہے تو ان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے اور ایسے باصلاحیت سیاسی قائدین عطا کرتا ہے جو اپنی افواج کے ساتھ مل کر ریاست کے تحفظ و ترقی کو یقینی بناتے ہیں۔ بلا شبہ خطہ پوٹھوہار شہیدوں، جانبازوں اور دلیروں کی سرزمین ہے۔ قوم پاکستان کو جب کبھی سرحدوں پر دشمنوں نے للکارا تو گجر خان کی سرزمین کے بہادر سپوتوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ہر اس میلی آنکھ کو نوچ ڈالا جس نے وطن عزیز کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ آئے اس دھرتی میں دلیر، بے باک، نڈر اور باصلاحیت لیڈر کی بات کرتے ہیں جس نے اپنی سیاست کا آغاز گجر خان کے پسماندہ حلقے سے پیپلز پارٹی کے کارکن جیالے کی حیثیت سے کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے عام آدمی کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت ملک کی آبادی 10 کروڑ تھی اور ووٹ دینے کا حق صرف 80,000 لوگوں کو تھا۔ 40,000 لوگ مغربی پاکستان سے اور 40,000 لوگ مشرقی پاکستان سے ووٹ کا حق رکھتے تھے۔ باقی تمام کے لیے سیاست شجر ممنوع تھی، ان کا کوئی لین دین نہیں تھا سیاست سے۔ لیکن یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو آئے جنہوں نے ہر بندے کو ووٹ کا حق دیا۔ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی سے وفا، محبت، عقیدت ان کا خاصہ ہے، وہیں اللہ کی عبادت کے بعد گجر خان کی خدمت، حلقے کی تعمیر و ترقی، گجر خان کی عوام کی فلاح و بہبود کو ہمیشہ عبادت کا درجہ دیا۔ اپنی انتھک محنت سے خطہ پوٹھوہار کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والے قوم پاکستان کے اس عظیم سپوت کو راجہ پرویز اشرف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنی انتھک محنت سے، مدبرانہ سوچ اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے افکار پر چلتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قیادت میں 2002 میں بھاری اکثریت کے ساتھ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ میدان سیاست کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ گجر خان کی دھرتی کے اس بیٹے نے اپنی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے سفر سیاست کی صعوبتوں، مشکلوں اور قربانیوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ متعدد بار الیکشن تو ہارے لیکن خطہ پوٹھوہار کی خدمت میں نہ کوئی کمی آئی، نہ راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو کچھ جانا۔ میرا مقابلہ مہنگائی کے ساتھ ہے، میرا مقابلہ جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دے تو جو میرا مشن ہے، جو میرے ذہن میں پروگرام ہے، جو میرے نوجوانوں کے لیے میں نے کام کرنا ہے، ان کے روزگار کے لیے کرنا ہے، ان کو میں نے ایک سکلڈ ورکر بنانا ہے۔ بس راجہ پرویز اشرف اور ان کا پورا خاندان جن کا مطمع نظر اقتدار نہیں بلکہ ملک و قوم اور بالخصوص گجر خان کی عوام کی بے لاگ اور بلا امتیاز خدمت کرنا تھی۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، گر پاؤں ٹوٹ جائیں تو یہاں سر کے بل چلو۔ اور جب رب العزت کے کرم سے وہ دن بھی نگاہ وقت نے دیکھا کہ 2002 میں بھاری اکثریت کے ساتھ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تو گجر خان کے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ یہ دور سیاسی جماعتوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ جہاں پارلیمنٹیرینز اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے تھے، وہاں یہ بھٹو شہید کا جیالہ، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا سپاہی تمام تر پیشکشوں کو ٹھکراتے ہوئے پارٹی سے وفا کرتے اور سیاسی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جدوجہد کے مشکل اور کٹھن راستے کو چنتا رہا۔ یہ راجہ پرویز اشرف کی محنت اور خطے سے وفاداری ہی تھی کہ بحکم پروردگار 2008 کے جنرل الیکشن میں خطہ پوٹھوہار کے اس فرزند کو فتح نصیب ہوئی۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف بطور وفاقی وزیر پانی و بجلی کابینہ کا حصہ بنے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس سے پہلے اس حلقے سے کبھی کوئی وفاقی وزیر نہیں بنا تھا۔ اللہ کے کرم کا سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ اس ملک و قوم اور بالخصوص گجر خان کی ماں بہنوں کی دعاؤں سے، راجہ پرویز اشرف کی سچی لگن اور ان کے پورے خاندان کی شبانہ روز محنت سے یہ کرشمہ بھی ہوا کہ ملک خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہونے کا تاج بھی خطہ پوٹھوہار کے عظیم فرزند کے ماتھے پر سجا۔
मुल्क के 19वें वजीर आजम होने का एजाज समेटा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के तरबियती याफ्ता जयाले वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस के दरवाजे हर खासवाम के लिए खोल दिए। हल्का इंतखाब की बात की जाए तो अरबों रुपए की लागत से इजाफी आबादी यूसी नड़ाली, इजाफी आबादी ढोका, यूसी रामा, ढोक लंडिया सुहाज, यूसी नड़ाली, नड़ाली कसवाल, यूसी भडाना, संदल रोड यूसी 3, ढोक पोर्ट नसीब, यूसी चंगा बंग्याल, ढोक जुम्मा यूसी गलियाना, ढोक मिर्जा अकबराबाद, यूसी गलियाना, ढोक मोड़ा गंडिया, गांव मीरपुरिया, गांव राजगान, गांव थरजियाल खुर्द, गांव मोड़ा कन्याल, गांव गोड़ा बजनियाल और गांव हरियाल में बिजली के मंसूबे मुकम्मल करके गुजर खान को तारीकी से निकाल कर उनमें बिजली की शानदार मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचाए। आज शायद ही गुजर खान ना कोई ऐसा देहात या इलाका या ऐसी आबादी होवे जिथे बिजली नहीं, और मैं समझना कि ये उन्होंने हक सी जड़ा मैं कोशिश की थी और हक अदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 255 गैस फराहमी के मनसूबाजात की बदौलत तहसील गुजर खान के सैकड़ों देहात मुस्तफीद। SMS दौलताला की अपग्रेडेशन, बेवल रोड पर टाउन बॉर्डर स्टेशन नस्ब, मंदरा और गोड़ा मंगोट में DRS नस्ब। तहसील गुजर खान में 1500 किलोमीटर तवील SNGPL गैस पाइपलाइन का जाल बिछाया। घर घर गैस पहुंचाना मेरा अज़्म था, जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबी दी, और बहुत सारे देहात में महदूद चंद देहात जो हैं वो गैस की जो है वो उससे खाली हैं, बाकी तमाम इलाके में गैस जो है वो पहुंच चुकी है। न्यू गमटी फीडर 11,000 वोल्ट हाई टेंशन लाइन और 500 किलो वोल्ट ग्रिड स्टेशन रवात का संगे बुनियाद। यूसी करीदोलाल मोजा राजी असनाल, नथ राजगान और गांव गोरसिया में पुराने ट्रांसफार्मर्स को नए और बड़े ट्रांसफार्मर्स से तब्दील। 157 बिजली के मंसूबाजात से तहसील गुजर खान के सैकड़ों देहात को बिजली की फराहमी। मंदिरा फीडर्स की अपग्रेडेशन, तहसील गुजर खान के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस का कयाम। पंजाब यूनिवर्सिटी के कयाम से मैं समझता हूँ कि गुजर खान के न सिर्फ आज के नौजवानों के लिए बल्कि आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं उससे मुस्तफ़ीज़ होंगी। इस यूनिवर्सिटी के क़याम से मुझे यकीन है कि मेरे इस खित्ते का कोई बेटा कोई बेटी जो है वो आला तरीन तालीम से महरूम नहीं रहेगी। जिस लेवल के उन्होंने काम किए तहसील बार में, उनके लेवल का कोई बंदा नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस जो पटवार कैंपस के नाम से बना है, तो उस हवाले से भी स्टूडेंट को पहले काफ़ी मुश्किल पेश आती थी जब वो यूनिवर्सिटी के लिए पिंडी इस्लामाबाद जाते थे, तो इस वजह से हमें काफ़ी रिलीफ मिला है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कौंतरेला का कयाम। गुजर खान के नौजवान तलबा और तालिबात के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट IT लैब्स। सरवर शहीद कॉलेज गुजर खान के लिए 4 दीवारी और नए ब्लॉक का कयाम। गर्ल्स कॉलेज गुजर खान के लिए मीटिंग हॉल और इंतजामी ब्लॉक की तामीर। ख़वातीन डिग्री कॉलेज गुजर खान में नए ब्लॉक का कयाम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब के, जिन्होंने हमारे लिए ये कॉलेज बनाया और हमारी बच्चियों के लिए आसानियाँ की। अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे, और आइंदा भी हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब भी हमारे काम आए। मंगोट गर्ल्स कॉलेज की तलबा के लिए बस और वैन्स की फराहमी। तहसील गुजर खान में लॉयर्स चैम्बर कॉम्प्लेक्स और जुडिशल कॉम्प्लेक्स कायम। लायर्स बुकलान ने कम्प्लैक्स नहीं तमीर हुआ है या बुकला वास्ते सोलर पैनल हुआ है। राजा परवेज़ अशरफ गुजर खान वास्ते रिकॉर्ड तरक्याती कम कराए। साडा वोट राजा परवेज़ अशरफ ना। मुकल्ला बरादरी के लिए सफरी सहूलियात और सोलर सिस्टम की फराहमी। तहसील गुजर खान में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर, नादरा ऑफिस दौलताला और दूर दराज इलाकों के लिए नादरा सब ऑफिस कायम। हम राजा साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारा रावलपिंडी जाने वाला वो जो काम था वो अभी गुजर खान में शुरू कर दिया है, और अनकरीब सुना है कि अभी चौक में भी इसका इफ्तिताह हो रहा है। जी माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा ये सेटअप बनाया आपने नादरा वालों ने। राजा साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उनकी बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी कोशिश है। पहले लोगों को बड़ी परेशानी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जब से राज साहब ने एक मामला शुरू किया माशाल्लाह लोगों की सारे मसाइल जो परेशानियाँ, टाइम की बचत है और बड़ा लोगों को बेनिफिट मिला है। तहसील गुजर खान में पासपोर्ट ऑफिस का कयाम। पासपोर्ट की सहूलत नहीं थी, हमें शहरों में जाना पड़ता था, अब हमें इधर ही मिल गया। राजा परवेज़ अशरफ साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इधर हमारे शहर गुजर खान में पासपोर्ट ऑफिस बना लिया है, जिससे हमारा हम नौजवानों का बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले पासपोर्ट ऑफिस गुजर खान नहीं था,
राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पासपोर्ट ऑफिस गुजरखान बना के लोगों की बहुत सहूलत कर दी है। गुजरखान में मास्टर क्रिकेट क्लब एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल का इफ्तिताह। गांव गोरसिया और यूसी रामा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह। 8,000 से ज्यादा नौजवानों को मुलाजिमत के मौके। किसानों को ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ज़रई कर्जों की फराहमी। रक्षा स्कीम का इजरा। की आवाज़ है राजा परवेज़ अशरफ, साडी शान है राजा परवेज़ अशरफ। पाकिस्तान बैतुल माल के तहत यतीम बच्चों की कफालत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत तहसील गुजरखान में मुस्तहक अवाम की माली मुआवनत। चकराली बदहाल की औरतों की माली मुआवनत और सिलाई मशीनों की फराहमी। गुजरखान की सहाफ़ी बरादरी के लिए सफरी सहूलियात की फराहमी। रेलवे स्टेशन गुजरखान की अपग्रेडेशन। ढोक मस्ताला यूसी नडाली में डिस्पेंसरी का क़याम। तहसील गुजरखान में साफ पानी की फराहमी के लिए 17 ट्यूबवेल्स का इजाफा। रूरल हेल्थ सेंटर यूनियन काउंसिल दौलताला को एम्बुलेंस की फराहमी। 70 किलोमीटर मंदरा से चकवाल रोड, 66 किलोमीटर सोहा तक चकवाल रोड। इधर पहले सड़क जो सिंगल थी उसमें बहुत मुश्किलात थी, मरीज़ों को आने जाने में बहुत मुश्किल था। यह रोड बन गई है और मरीज़ों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है, हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा इधर। गुजरखान अंडरपास की तामीर। गुजरखान से दौलताला रोड, गुजरखान तबलोट रोड। कोई बंदा सोच भी नहीं सकना सी कि इतने रोड बन सी। राजा साहब ने हमारी रोड बनवाई है और ये पूरा क्रेडिट राजा साहब को है। मैं तमाम सियासी पार्टियों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई बंदा सवाए पीपल्स पार्टी के हमारे पास वोट लेने के लिए ना आए। गुजरखान में जितने भी गैस का और बिजली का पानी का काम किया है परवेज़ अशरफ ने किया है। हमारा काम है परवेज़ अशरफ को जिताना। इंशाल्लाह हम वोट पीटी को परवेज़ अशरफ को देंगे। गुजरखान में राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो NA-52 के लिए इंतहाई अहम उम्मीदवार हैं, उन्हें जिताना चाहिए इसलिए कि राजा साहब ने तहसील गुजरखान की पहचान है। गुजरखान में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो राजा साहब ने मुकम्मल करवाए हैं। गुजरखान की पहचान है राजा साहब। मैं समझता हूँ पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से ये कहूँगा कि अगर वोट का हकदार है तो राजा परवेज़ अशरफ है गुजरखान। इस 2024 में इलेक्शन में राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे और ये गरीबों की आवाज़ है। और राजा परवेज़ अशरफ ने यूनिवर्सिटी बनवाई है। राजा परवेज़ अशरफ ने यहाँ गुजरखान में बहुत सारे काम किए हैं। साढ़े काम साढ़े राजा परवेज़ अशरफ आसन इंशाल्लाह कि कम करके था बहुत बड़ा इन्होंने साढ़े परेशान है और इंशाल्लाह बहुत थोड़ा काम हो रहे हैं। जनाब परवेज़ अशरफ साहब बहुत सारे इलाके में काम कर रहे हैं। इस इलाके में जितने फ्लाई काम हुए हैं, रोड कह रहे हैं, गैस कह रहे हैं या जो भी ना, तो वो जो है PP के दौर में परवेज़ अशरफ साहब के जो PM थे उस दौर में वो हीरा बंदा है गुजरखान में, उसने बहुत काम कराए। लिहाजा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हीरे आदमी को हमेशा राजा परवेज़ अशरफ साहब को वोट दें क्योंकि वो बहुत ही प्यारा बंदा है। मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। तहसील गुजरखान में 1947 के बाद अगर किसी लीडर ने यहाँ पे काम कराए हैं तो वो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब बहुत ज़रूरी हैं, उनकी टीम बहुत ज़रूरी है। राजा खुर्रम परवेज़ अशरफ साहब ज़रूरी हैं कि वो जब आएंगे तो इस तरक्की के सफ़र को वो और तेज़ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला गुजरखान जो है वो मज़ीद तरक्की करेगा। पहले तो ट्रैफिक बहुत थी, आने जाने में मसला होता था। अभी ये रोड बनी है राजा परवेज़ अशरफ ने बनवाई है तो हमें इससे बहुत सहूलत हुई है। सारा काम सिर्फ राजा परवेज़ अशरफ साहब करा सकते हमें और कोई भी नहीं कर सकता। टाइम ज़्यादा लगना सी, वक्त ज़ाया होना सी, हुण 1 वे बन गया। इसी वजह तो सफ़र जड़ा घट गया। हुण 40-45 मिनट सफ़र है, पहले 1.5-2 घंटे लगने सन। कि जितने कमां दी भी गल बाणे पे तुसां भावें वो पासपोर्ट ऑफिस है, भावें वो अंडरपास है, भावें गैस नहीं सप्लाई है, भावें बिजली नहीं सप्लाई है, खाए बड़ियां शारावां जिस तरह मंदरा चकवाल है, सुहावा चकवाल है, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस है, पहले इस तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस है, या कॉलेजेस ने जिहड़ी खिदमत की है या वकला बरादरी ने जिहड़ी मैं खिदमत की है, ये किसी पर कोई एहसान नहीं। ये उन्होंने हक सी ते मेरा फर्ज सी। 2013 में राजा परवेज़ अशरफ इलेक्शन तो हार गए, लेकिन हल्का एक दर्दमंद, मेहनती, मुदब्बर और मुखलिस लीडर से महरूम हो गया। लेकिन यहाँ तज़किरे की बात यह है कि इस अजीम लीडर के जज्बे को हार शिकस्त नहीं दे सकी। उसी जज्बे से हल्की की खिदमत जारी रही। राजा परवेज़ अशरफ की अहलिया मोहतरमा नुसरत परवेज़ ने अपने हल्के की ख़वातीन को
पेशा वराना तालीम से आरास्ता करने के लिए बेपनाह मेहनत की, गरीब और नादार औरतों की माली मावनत की, और जिन बच्चियों का कोई कफील न था, राजा परवेज अशरफ ने बाप बनकर दस्त शफकत उनके सरों पर रखा। गरीब बच्चियों के लिए जहेज की फराहमी को यकीनी बनाया। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। और फिर उन्हीं माओ बहनों और बेटियों की दुआओं का समर था कि एक बार फिर गुजर खान को 2018 में राजा परवेज अशरफ जैसी बेबाक और निडर बासलाहियत क़यादत मिली, और 2018 में राजा परवेज अशरफ ने बादे मुखालिफ को शिकस्त दी। 16 अप्रैल 2022 को स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे का हल्फ उठाया, जहाँ तालीम, सेहत, रोड, पानी, बिजली, गैस, इन तमाम पर काम हुआ, वहाँ खेल के मैदान में भी आपकी खिदमत काबिल तहसीन है। 40 साल पार्टी और हल्की की खिदमत का ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि जिनके खून में वफा होती है वो कौम व मिल्लत के वो कर्ज भी उतारते हैं जो उन पर फर्ज नहीं होते। मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। नस्ल दर नस्ल खिदमत का ये सिलसिला राजा परवेज अशरफ के भाई राजा जावेद अशरफ, राजा इमरान अशरफ और साहबजादे खुर्रम परवेज राजा और बैरिस्टर शाहरुख तमाम गुजर खान की फलाह व बहबूद के लिए कोशा। राजा परवेज अशरफ ने जहां इक़्तिदार के ऐवानों में बतौर वज़ीर आज़म तारीख रकम की, वहीं बतौर स्पीकर वो कारनामा हाय सर अंजाम दिए जो इससे पहले किसी सियासतदान, लीडर या स्पीकर के हिस्से में नहीं आए। बतौर स्पीकर असेंबली हॉल को उन आम लोगों के लिए खोला जो कि शायद जिंदगी में सिर्फ वहां बैठने का ख्वाब ही देख सकते थे, लेकिन उनके इस ख्वाब को शर्मिंदाए ताबीर करने वाली हस्ती का नाम है राजा परवेज अशरफ। ये कोई सही आसान नहीं था। ऐवान में तालिबे इल्म, बच्चे, बूढ़े, फनकार, अदीब, लिखारी, ख्वातीन, ख्वाजा सरा को बाइज्जत तरीके से मदु करना और सामने बैठकर उनके हर सवाल का बुर्दबारी से, फहमो फरासत से जवाब देकर उनको मुतमईन करना, ये खासा बिलाशुबा सपूत गुजर खान राजा परवेज अशरफ का ही था। काबिल गौर बात है कि भुट्टो शहीद का ये सिपाही, बेनजीर भुट्टो शहीद का जयाला भाई, खुद को सियासत का एक तालिब इल्म कहता है, और फलसफाए भुट्टो का ये तालिब इल्म न सिर्फ ऐवान को आम आवाम के लिए खोलता पाया गया, बल्कि 1973 के आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर पहली बार तारीख में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के इश्तराक से एजाजी टिकट का इजरा किया गया। नादरा के इश्तराक से एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐप को मुतारिफ कराया गया। पाकिस्तान की 75 साला तारीख में पहली बार राजा परवेज अशरफ ने बच्चों के समर डेमोक्रेसी इंटर्नशिप स्कूल का एहतमाम किया। तारीख के ये नए बाब खुद तारीख के माथे का झूमर बने। किताबी और तस्वीरी नुमाइश पाकिस्तान की पहली पार्लियामेंट के बनने से स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के ओहदा संभालने तक, तारीख ने खुद तारीख को बनते देखा, और इस तारीख का कातिब फर्जंदे गुजर खान, फखरे पाकिस्तान और वतन अजीज का मान राजा परवेज अशरफ था, जिसने अपने इन कारनामों से न सिर्फ तारीख के पन्नों को ज़िया बख्शी, बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम के दिलों में और अजहान में भी इन कामयाबियों और कामरानियों का सिक्का जमा दिया। पाकिस्तान के अवाम आपसे मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, क्योंकि ऐसे लाल माएँ रोज नहीं पैदा करती जो कौमों के मुस्तकबिल संवारने। कौम की हर माँ, बहन, बेटी, बूढ़ा, जवान और गुजर खान के अवाम आपको आपकी सलाहियतों और काविशों को सलाम पेश करती है। राजा परवेज अशरफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।